سیکھیں گے 5ویں کلمے کے تعلق سے جو یسوع مسیح کا 7 صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 28 تا 30 آیت تک ہم کلام خدا سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہو تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس 5ویں کلمے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اور جب ہم صلیب پر غور کرتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا، تو اگر ہم ان 7 کلمات پر غور کریں تو ہمیں یہ صاف نظر آئے گا کہ یسوع مسیح کا جو بدن ہے وہ کامل انسان کے طور پر وہ صلیب پر لٹکائے گئے ہیں۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کامل خدا تھی اس لیے انہیں وہ صلیبی جو اذیت تھی وہ اتنی محسوس نہیں ہوئی جتنی کہ عام ایک انسان کو ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کامل انسان تھے اور ایک بدن کے طور پر ایک بدن لیے ہوئے وہ صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، اور وہ ان ساری اذیتوں کو، ان ساری مصیبتوں کو، ان سارے دکھوں کو وہ برداشت کر رہے تھے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے ان کلمات کو کہنا شروع کیا تو ان 7 کلمات میں ہر ایک کلمے کے بعد اس کے دوسرے کلمے میں اس کی تکمیل ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے پہلا کلمہ جب کہا جو کہ معافی کا کلمہ ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر دوسرا کلمہ جب خدا یسوع مسیح نے کہا تو انہوں نے کہا اس ڈاکو سے جس نے درخواست کی کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو ساتھ ہی اس ڈاکو کو نجات بھی دے دی۔ یعنی معافی کا کلمہ، پہلے معافی کا کلمہ کہا، اس کے بعد پھر نجات کا کلمہ ہوا اور وہ معافی کا کلمہ اس نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ آتا ہے، وہ بھی جسم کے طور پر خدا یسوع سے نے کہا، کیونکہ جسم کے طور پر وہ ماں کی فکر کر رہے تھے، اپنی ماں کی فکر کر رہے تھے، کیونکہ وہ جسم رکھتے تھے، کیونکہ وہ انسان تھے اور انسانی جذبات ان کے اندر تھے جو اس کی ماں کے لیے تھے۔ وہ اپنی ماں کو اپنے اس عزیز شاگرد کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اس کے سپرد کرتے ہیں کہ تو اب سے ان کا کیا کرے گا، خیال کرے گا۔ سو میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح ان دکھوں کو، ان مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اگر ہم اس مفہوم کو سمجھ لیں، ان 7 کلمات کے مفہوم کو سمجھ لیں تو ہمیں صلیب کے سارے پروسیس کی سمجھ آ جائے۔ کیوں خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے، کیوں انہوں نے اتنے دکھ و مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اگر ہم غور کریں تو انجیلوں پر غور کریں تو پہلا کلمہ ہے، جو ایک کلمہ ہے، چھوٹا کلمہ جو ہے وہ 2 اناجیل میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ متی اور مرکز میں ہے، وہ چوتھا کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوکا کی انجیل میں 3 کلمات کا ذکر آتا ہے، جو کہ پہلا، دوسرا اور پھر اس کے بعد 7واں ہے۔ اور یوحنا کی انجیل بھی 3 کلمات کا ہی بیان کرتی ہے، جو کہ 5واں، 6واں اور 3واں ہے۔ تو جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم مسیح کی اس صلیب کے سارے کلمات کو، اس ساری اذیت کو بھی جان لیتے ہیں اور ہم نجات کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔
मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, ये भी उसके जिस्म को जाहिर करता है, उसकी इंसानियत को जाहिर करता है। अगर हम देखें कलाम खुदा को, तो रात जब से मसीह यीशु को गतसमनी से गिरफ्तार किया गया है, तो जगह जगह उसकी अदालतें हो रही हैं, जगह जगह उसको लेकर जा रहे हैं। इस पूरे वक्त में खुदा यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, और उसके जिस्म से, उन कोड़ों की मार से, कांटों की ताज की वजह से, और उस लांतान की वजह से, जो उसको थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, उसको गालियां दी जा रही थी, मसीह के बदन को बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस हो गई थी। और बदनी तौर पर वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। हम ये सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारी रूहों के प्यासे, बेशक वो हमारी रूहों के प्यासे हैं, लेकिन वो अपने बदन को भी जाहिर कर रहे हैं कि मैंने अपने बदन पर वो दुख जो तुम्हारे हैं, जो हमारे हैं, वो बर्दाश्त किए। अगर हम इस कलमे को, इस 5वें कलमे को अपने जाती तौर पर ले लें, तो हम मसीह की मोहब्बत को हासिल कर लेंगे। उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो क्या हुआ? आगे लिखा है कि पास ही क्या पड़ा था? एक बर्तन में सिरका पड़ा था, और सोफे में भिगोकर उसे चुसाया गया। मेरे अजीजों, सिरका एक कड़वाहट है। एक बहन थी, उसने कहा कि मैं इसको महसूस करना चाहती हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह को सिरका दिया गया तो कैसा फील होता है। उसने सिरका लिया और थोड़ा सा पी लिया, तो वो बहन बताती है कि जब मैंने पिया तो जहां जहां से मेरे अंदर वो सिरका गुजरता गया, मुझे जैसे आग लगाना उसने शुरू कर दिया। यीशु मसीह ने ज़ाहिरी तौर पर अपने जिस्म के ऊपर तो अज़ियत सही, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी उसने सिरका पीकर हमारे लिए अज़ियत को बर्दाश्त किया। सो मेरे अजीजों, वो जो सामरी औरत से कहता है कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी देता। उसके पास जिंदगी का पानी है, वो आज सलीब पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। जब उसने ये कलाम उसके साथ किया तो उसने अपनी अलूहियत में दिया, और अब जब वो सलीब पर है तो वो एक इंसान है और कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। मेरे सो एक आलम बताते हैं कि खुदा यीशु मसीह एक ही वक्त में वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। वो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब जाते थे तो उनके फुट मार्क्स नहीं आते थे, उनके जो कदमों के निशान नहीं होते थे, क्योंकि वो खुदा थे। और इसको हम देख सकते हैं इस तरह से भी कि खुदा यीशु मसीह जब झील के पानी के ऊपर चले हैं तो वो क्या थे? वो कामिल खुदा थे। और इसको हम इसके साथ इसका लिंक कर सकते हैं कि जब हम पैदाइश में पढ़ते हैं कि जब कुछ भी ना बना था तो क्या था? चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था जमीन पर, और घेराव थे, और पानियों के ऊपर क्या था? खुदा की रूह क्या करती थी? जुम्बिश करती थी। और वही रूह यीशु मसीह में है जो पानियों के ऊपर जुम्बिश करती चल रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा है। और जब हम देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और रात कुछ ना खाया तो मिलाकर क्या हुआ? जिसे भूख लगी, जिससे ये जाहिर होता है कि वो बदन रखते हैं, उनका बदन है, वो इंसान है, उन्हें भूख लगती है। और अब सलीब पर वो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की कि हमने मसीह की प्यास को बुझाना है। मैंने पहले कहा कि अगर हम इसे पर्सनली तौर पर ले लें, ज़ाती तौर पर ले लें इस कलिमा को, तो फिर हमें समझ आ जाएगी मसीह की मोहब्बत। फिर हम कभी मसीह को अपने उन बुरे अमाल से, अपनी बुरी अदात से, उस नाफरमानी से हम मसीह को सिरका नहीं पेश करेंगे, वो कड़वा सिरका नहीं पेश करेंगे। जब हम ये जान जाएंगे कि मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ,
वो मेरे लिए कह रहा है कि मैं प्यासा हूं और मैं हूं जो उसकी प्यास बुझा सकता हूं। फिर हम उसकी ताबेदारी से, उसकी मोहब्बत से, उसके कलाम को पढ़कर, उसकी मोहब्बत ब्याह कर, उससे अपना नजात हिंदा कबूल करके फिर हम उसे ठंडा और मीठा अपने अमाल का पानी पेश कर सकते हैं। उसकी प्यास को फिर हम बुझा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर गौर करें कि आज वो मुझे कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। आज हम इसे अपनी शक्ति तौर पर लें कि मैंने अपने मसीह की, अपने खुदावंद की, अपने यीशु की, जिसने मेरे लिए दुखों को बर्दाश्त किया है, जिसने मेरे लिए सलीब उठाई है, जिसने मेरे लिए दाढ़ी मिचवाई है, जिससे मेरी खातिर गालियां दी गई है, जिसके सर पर कांटों का ताज मेरी खातिर रखा गया है, मैं उसकी प्यास बुझा सकता हूं। अजीजों, आइए इस शॉर्ट टाइम में, इस कलील वक्त में इस बात पर गौर करें कि मैंने मुझसे की प्यास को बुझाना है, क्योंकि वो सलीब पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। हमने उसको वो सिरका नहीं पीछा। जब उसने सिरका पिया तो उसका अंदरूनी जिस्म जो है वो सारा छलनी हो गया। और इसके बाद लिखा है कि मसीह ने क्या किया, तमाम हुआ और सर झुकाकर क्या किया, जान। आइए हम अपनी जिंदगी पर हम हर साल इस मुबारक जुमा में इन सात कलमात को सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं जैसे ही बाहर जाते हैं हम भूल जाते हैं। इस बात पर गौर, इसे पर्सनली तौर पर लीजिए, इसे शक्ति तौर पर लीजिए। कहिए कि खुदावंद मैं तेरी प्यास बुझाता हूं, मैं तेरी प्यास बुझाता हूं। आज कि इस मुबारक जुमा में मैंने ये जान लिया है कि तूने मेरे लिए जान ली है, तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं, तूने मेरे लिए मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। इसलिए मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ और करती हूँ कि मैं तेरी प्यास बुझाऊंगी और मैं तेरी प्यास बुझाऊंगा अपने इस ताबेदारी से, तेरे कलाम में आकर और तुझे अपनी जिंदगी में लेकर अपने दिल के दरवाजे को खोलकर मैं तेरी प्यास बुझाऊंगी। खुदा हम आप सबको बरकत दे। आपको भी।